national capital, investigators have mapped bomber Umar un-Nabi's movement using 1,300 CCTV cameras, tracing his I-20 right from Faridabad to Delhi NCR and back. Now, the agencies traced his movements from Al Falah University in Faridabad to Delhi-Mumbai Expressway and then to Nuh and back before finally he entered Delhi on the morning of November 10th. Now, this car was captured near sensitive locations, including Kartavya Path as well as India Gate, and this is right before the Red Fort blast. Now, Nabi assembled IEDs in Nuh, receiving instructions from his handlers abroad. In fact, this is the latest we're getting in as far as the movements and the trail of terror goes in this case. Now, Al Falah University chairman Javed Ahmed Siddiqui has also been issued 2 summons by the Delhi Police Crime Branch. The summons have been issued in connection with the alleged financial irregularities as well as fraudulent activities which were part of the wider investigation into the recent Delhi Red Fort blast case. Now, the major irregularities were flagged by the UGC and the National Assessment and Accreditation Council. Delhi Police in this case has now registered 2 FIRs against the Al Falah University. And now some more developments coming in the Red Fort blast case. The National Investigative Agency has now achieved a major breakthrough. This is by arresting Amir Rashid Ali, who is an associate of the suicide bomber Umar un-Nabi. Now, Amir here was picked up from Delhi after investigators found that the car which was used in the attack was actually registered in his name. Amir, who is a resident of Sambora in Jammu and Kashmir, allegedly conspired with Umar to execute the attack. The NIA has now also seized another vehicle which was owned by Umar, and it is now undergoing forensic examination. Remember, viewers, the November 10th attack right in the heart of the Delhi killed about 10 people and injured over 25. Investigators have so far questioned 73 witnesses, and searches are also on across multiple states. Joint operation in coordination with Delhi, Jammu and Kashmir, Haryana and UP police is underway, and the agency is now following several leads to uncover the larger conspiracy behind the Red Fort bombing. Meanwhile, in Jammu and Kashmir, the parallel probe into what officials are calling a white-collar terror module has also widened. This module, investigators say, was being run by a group of doctors along with the deceased Dr. Umar un-Nabi emerging as the key planner. Investigators say that this network had been scouting for a suicide bomber since last year. And now, based on the interrogation of arrested doctors, a man named Jasir has been detained. He told police that Umar tried for months to brainwash him into becoming a suicide attacker, while others in the group wanted him to work as an overground worker for Jaish-e-Mohammed, the Pakistan-based terror group. And now, another major revelation coming to light. Investigators say that Umar was actively attempting to radicalize students, junior colleagues, as well as vulnerable youth across multiple states. At this point, police are now trying to trace all of these individuals who were in contact with the terror accused. And now News9 brings you the most detailed Crown investigation into the 18 hours, the final hours before the Red Fort blast. Let's take a look.
दिखाएं तो देखिए यहाँ पर एसटीएफ भी आई हुई है। दरअसल खबर ये थी कि जो आतंकी डॉक्टर उमर है उसने ब्लास्ट से पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में सामने जो आप ये मकान देख रहे हैं, आप संजीत तरह क्लोज करके दिखाइए, यहाँ पर जो है टीम जो पहुँची है अभी, क्योंकि खबर ये थी कि डॉक्टर उमर जो है वो इसी इलाके में किराए पर रह रहा था और इसका भी कनेक्शन जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, वहाँ का जो टेक्नीशियन था उसकी साली का मकान था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर उमर है वो इसी जगह पर किराए पर रह रहा था। ब्लास्ट वाले समय से पहले भी जो है वो इस इलाके में आया था और उसकी सीसीटीवी भी पाई गई है। अब फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है हरियाणा एसटीएफ पहुंची है जांच के लिए। आप देखेंगे कि पूरा जो इलाका है कॉर्डन ऑफ एक तरीके से कर दिया गया है, हर तरफ जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है और फिलहाल एसटीएफ ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मकान है इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा था, क्या हाइड आउट के लिए था या फिर जिस तरीके से फर्टिलाइज़र खरीदने की बात जो है वो आ रही थी नूह से, तो उसको यहाँ पर क्या वो इकट्ठा करता, तमाम चीज़ों को लेकर के फिलहाल यहाँ पर जो है जाँच एजेंसी जो है वो जांच कर रही है। एक बार आप संजीत आगे जूम करके दिखा दीजिए, जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर हरियाणा की भी, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जांच की जा रही है। और ये उमर का एक अन्य ठिकाना है जिसको वो नूह में इस्तेमाल किया करता था। तो फिलहाल उस एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहाँ पर आतंकी उमर जो है ब्लास्ट से पहले की तैयारी और साथ ही साथ में ब्लास्ट के दिन से पहले भी यहाँ आने की उसकी बात की जा रही है। और देखिए फिलहाल यहाँ पर जो जाँच एजेंसी हैं उन्होंने पूरा इस इलाके को घेरा हुआ है और यहाँ पर जो है अब जांच की जा रही है। जो मकान आप देख रहे हैं सामने, देखिए जूम करके दिखाई संजीत, जिस मकान को खोला जा रहा है वो कमरा देखिए, उसी में बताया जा रहा है कि जो आतंकी उमर है उसने लिया हुआ था, अल-फलाह के ही टेक्नीशियन था, उसकी साली का ये मकान है जहाँ पर जो है ये आतंकी उमर जो है उसने इसको किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ब्लास्ट से किराए पर लिया जा रहा था। फिलहाल यहाँ पर जो सबूत है उनको तलाशा जा रहा है। मौत का सामान जुटा चुके आतंकी उमर को अब ज़रूरत थी कैश की, जिसके लिए वो हरियाणा के फरीदाबाद से नूह की तरफ बढ़ा और जब वो नूह में दाखिल हुआ तो टोल पे किस तरीके से उसकी गाड़ी आई थी आप ये तस्वीर पर देखिए। तस्वीर पे रखिएगा आप संजीत और आप बताते चलिए कौन सा टोल है ये? अलीपुर तिगरा टोल प्लाजा है जी, जो फिरोजपुर जीरका तहसील में पड़ता है, नूह डिस्ट्रिक्ट है सर। ये जो गाड़ी आ रही है वो वही I-20 है? हाँ जी, ये वही I-20 है। दिल्ली पुलिस भी हमारे पास टीम आई थी और इसकी रिकॉर्डिंग भी करके ले गई है सर। तो ये मुझे थोड़ा समय बताइए किस वक्त यहाँ से गया होगा अंदर? ये 10 तारीख को 12:58 पे है सर। 10 तारीख यानी कि जिस दिन शाम को ब्लास्ट हुआ था उसके एक रात पहले। हाँ जी, तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यही वो I-20 है जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था। और देखिए इस सीसीटीवी के मुताबिक 10:58 के आसपास का ये समय है। और आपको बता दें इससे आगे जो है देखिए यही I-20 कार है जिसमें मौत का सामान था। जो डॉक्टर उमर है वो आगे फिरोजपुर ज़िरका में एक SGF के ATM की तरफ जाता है। वहाँ से जब उसे कैश नहीं मिलता है तो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड है उसको वो बिठाकर उसे पैसे का लालच देकर दूसरी जगह जाता है और जब वहाँ से कैश उसे मिल जाता है तो वापस रात को जो है सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ता है और उसके बाद देखिए इसी टोल से वापस जाता है। और जो समय है उस वक्त जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि जब 12:58 वो यहाँ से जाता है तो 1:36 के आसपास जो है वो वापस जाता है। ये देखिए डॉक्टर उमर की वही कार है HR 26CE 7674 जो कि लाल किले के सामने ब्लास्ट हुई थी। अब इसका आप वीडियो और चला दीजिए जिससे हम पता लग पाए कि किस तरीके से जो डॉक्टर उमर है, ये देखिए जब पैसा उसे मिल गया तो इसी टोल प्लाज़ा से वो वापस फरीदाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाता है। एक बार फिर से आपको वीडियो दिखाते हैं और इसी तरह की जो वीडियो हैं उससे जांच टीम जो है लगातार जांच कर रही है। देखिए I-20 वही जिसमें डॉक्टर उमर ने विस्फोटक रखे हुए थे और विस्फोट जो है वो लाल किले के सामने हुआ है। बताया जा रहा है कि जब वो रात को तकरीबन 1:45 बजे के आसपास में यहाँ से निकलता है, लेकिन जब बदरपुर में एंट्री करता है तो वक्त तकरीबन 7:15 के आसपास हो रहे थे। जांच एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि ये यहाँ से कहाँ गया था। ये बताइए जैसे ये रास्ता है आगे कहाँ जाता है? ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से चढ़ जाता है सर। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, उधर से आप KMP होते हुए कहीं भी जा सकते हो सर। तो यानी कि यहाँ से फरीदाबाद, हाँ जी, फरीदाबाद भी चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, इधर आप मुंबई कहीं भी जा सकते हो सर। तो ये तो तय है कि जो डॉक्टर उमर था आतंकी
वो इसी टोल प्लाजा से आया और यहीं से कैश लेने के बाद वापस जो है दिल्ली मुंबई हाईवे पे पहुंचा और वहां से आगे जो है वो बदरपुर की तरफ गया। 8:15 के आसपास की लोकेशन है। इसके बाद दिल्ली में कई इलाकों में घूमता है और फिर 3:15 के आसपास जो अपनी गाड़ी है वो जो है लाल किले के अंदर पार्क करता है और 3 घंटे पार्किंग बैठा रहता है। जब उसके बाद निकलता है तो वो ब्लास्ट देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया।